اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کے بھیجا اور آپ کے ایمان کو، آپ کی محبت کو جنت میں داخلے کا سبب بنایا، آپ کی شریعت سے عمل کرنے والے کو ہدایت یافتہ بنایا، اور جو ساری فضائل خوبیاں انبیاء میں موجود تھیں وہ ساری آپ نے جمع کر دی۔ کسی کا صبر، کسی کا حلم، کسی کا علم، کسی کا حسن، وہ سب کو مجتمع کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال سارے نبیوں میں ایسے ہے جیسے کسی نے کوئی عمارت بنائی، کوئی محل تعمیر کیا، پھر لوگوں کو کہا کہ آؤ میرا گھر دیکھو، میرا محل دیکھو۔ لوگ محل دیکھنے کے لیے آتے، سارا گھر بڑا خوبصورت تھا، مگر ایک اینٹ چھوڑ دی گئی تھی، ایک پتھر کی جگہ چھوڑ دی گئی تھی، وہ لگایا نہیں تھا، اور ہر کوئی یہ خیال کرتا تھا اگر یہ پتھر لگ جائے تو اس کا حسن مکمل ہو جائے۔ تو نبیوں کی عمارت میں وہ آخری پتھر ہوں، میں وہ آخری اینٹ ہوں اس عمارت کی جس نے نبیوں کے اس محل کو مکمل کر دیا۔ اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہے کہ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، آپ سے بدتمیزی کرے، آپ کی اہانت کرے، تو دنیا والوں تم کچھ کرو نہ کرو، انا کفیناک المستہزئین، ان مذاق کرنے والوں کے لیے میں کافی ہو جاتا، میں خود بدلے لوں گا۔ جس کا کہا زمین والوں اگر تم یہ بوجھ نہیں اٹھاتے، یہ فرض نہیں نبھاتے، تو پھر میں یہ کام خود کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کہنے لگے آپ کی تو اولاد ہی نہیں ہے، آپ کی تو نسل ہی نہیں ہے، آپ کو تانے دینے لگے۔ زمین پہ تانا دیا، آسمان سے جواب آیا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا، ہم نے آپ کو خیر کثیر دی۔ فصلی لربک وانحر، بس آپ کے ذمہ نماز ہے اور قربانی کرنا ہے۔ ان شانئک هو الابتر، ہم ان کو بے نام و نشان کر دیں گے، ہم ان کی نسلیں مٹا دیں گے، ہم ان کے نام کو ختم کر دیں گے۔ جو آپ کے نام کے اوپر بات کرتے بے نسل ہو گئے۔ آج ابو جہل کی کوئی نسل نہیں، آج ابو لہب کی کوئی نسل نہیں ہے، عتبہ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، ختم کر دیے۔ ان شانئک هو الابتر، ہم ان کو بے نام و نشان کر دیں گے، ہم ان کو بے نسل کر دیں گے، ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ آپ کو اوپر کون ہے؟ ورفعنا لک ذکرک، آپ کے نام کو ہم نے اونچا کیا ہے، آپ کے نام کو ہم نے بلند کیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، ہم نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، جب تک ہر چیز سے زیادہ پیارا کون ہو جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جب تک سب سے زیادہ نہیں ہو جاتی کہ لا یؤمنو، تمہارا کوئی ایمان نہیں، تم کلمے پڑھو، تم قرآن پڑھو، تم نمازیں پڑھو، اگر محبت پہ نقص ہے ایمان دے۔ انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم لوگ جا رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوش قسمت لوگ تھے، ان کا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی موقع دے گا انشاءاللہ، جنت میں جائیں گے، ہمارے ہاتھ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوگا۔ انشاءاللہ یہ وقت ضرور آئے گا
मगर शर्त यह है कि हम अमल के ऊपर आए, हम मोहब्बत के ऊपर आए, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हक अल्लाह ने हम पे वाजिब किए हम उनको अदा करें, हम गफलत ना करें, हम सुस्ती ना करें। हमारी सुस्तियों ने आज काफिरों को शह दी है, उनको मौका दिया है कि वो बातें करते हैं, वो खाके बनाते हैं, वो मुकाबले करते हैं, उसमें उनका कोई कमाल नहीं है, हमारी बेहिसी का दखल है। वो औलाद अच्छी हो ना, वो बाप को कोई गाली नहीं देता, औलाद में दम हो ना, दादा पे कोई बात नहीं करता। जब औलाद नकम्मी हो जाए, गैरत कम हो जाए, फिर बापों को लोग गालियां देते हैं कि माओ को भी दे देते हैं। इसका पूछने वाला कौन है, इसका वारिस कौन है, यह लावारिस है। और मुंह तोड़ने वाले मौजूद हो, मुंह बंद करने वाले मौजूद हो, जुबानें खींचने वाले मौजूद हो, तो फिर किसी की जुबान बोलती नहीं। मगर आज लोग अपने बाप के लिए गाली बर्दाश्त नहीं करते, अपनी मां के लिए गाली बर्दाश्त नहीं करते, अपनी बहन बेटी अपनी जात के लिए गाली बर्दाश्त नहीं करते। आज बर्दाश्त है तो किसके लिए? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके लिए बर्दाश्त। बाप को गाली दे सारी रात में सोते, मां को गाली दे बदला ना ले चैन नहीं आता। हम जेलों में काम करते हैं, जाके कैदियों की बहबूद का, फलाह का, उनके इलाज मुआवजे का, जेलों में जाते हैं। तो मैं कैदियों से अक्सर पूछता हूं जेल में क्यों आए? कहते मोहल्लों में बच्चों का झगड़ा हुआ, मोहल्ले में एक ने दूसरे को गाली दी, दूसरे ने पहले को गाली दी, झगड़ा पड़ा, झगड़ा बच्चों से बड़ों में आ गया, मैंने थप्पड़ मारा, उसने डंडा मारा, मैंने गोली मारी, बंदा मर गया। एक गाली से खानदान खत्म हो गए। ये दुनिया में गालियों का ही हाल है। लड़ाई हो जाए ना, साइकिल वाला पैदल से टकरा जाए, मोटरसाइकिल वाला किसी से टक्कर हो जाए, बंदे गुस्से में आ जाए। गुस्से में आने के बाद पहली बात ये कहते गाली नहीं देना, मैं सब बर्दाश्त करूंगा मगर मैं गाली, ये होता है कि नहीं होता? कहता सब कुछ करना, जुबान संभाल के मेरी मां तक नहीं जाना, मेरे बाप तक नहीं जाना। और लोगों अपनी जातों के लिए कहते हैं, क्या नबी की जात के लिए भी कहते हैं? अपनी जातों के लिए सब ये फार्मूला बनाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए लोग कहते हैं, आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम ये मुकाबला वापस देते हैं। तो ये एक मुकाबला, दो मुकाबला नहीं है, ये सालों की एक पूरा यूरोप चला हुआ है। दुनिया के 200 अखबार हैं, दुनिया की हजारों वेबसाइट्स हैं, और दुनिया के दर्जनों मुल्क हैं, दर्जनों हुकूमतें हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के इस अमल को मुसलसल किए जा रहे हैं। कभी डेनमार्क शुरू कर देता है, अभी हॉलैंड ने शुरू किए, पहले जर्मनी फ्रांस में थे, पूरा यूरोप इस गंद में मुलव्विस है। और वो कहते हैं ये आजादी इजहार है। तो मैं समझता हूं आज का मौजू अगर हम इस तरफ चले गए तो लंबा हो जाएगा। मैं आपको कुछ सहाबा की बातें बताऊंगा, कुछ मैं अपने आप को समझाऊं, कुछ आपको बताऊं। हमारा ईमान हमसे तकादा करे कि हम पीछे रहे, हमारी गैरत जिंदा हो, हमारा अपने नबी से ताल्लुक बने, क्योंकि क़यामत के दिन यही ताल्लुक काम आना है। ये ला ताल्लुकी हमें नुकसान दे देगी, ये ताल्लुक हमें जन्नत में ले जाएगा। तो हजरत उमर का हाथ पकड़ा हुआ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और कह रहे हैं, उमर क्या ख्याल है मेरे बारे में? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान के अलावा आप मुझे हर चीज से ज्यादा महबूब, अपनी जान के अलावा मेरे माँ बाप, मेरी औलाद, सब चीजों से ज्यादा आपसे मोहब्बत है, अपनी जान के अलावा। का उमर अभी तो मुसलमान, अभी तेरा मसला ठीक नहीं है, जब तक अपनी जान से भी ज्यादा मुझे अजीज नहीं करेगा, ईमान नहीं का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जान से भी ज्यादा आप मुझको महबूब।
حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے والدین، میری اولاد، میرا سب کچھ شدید گرمی ہو، شدید پیاس ہو، اس وقت میں جو بندے کو ٹھنڈے پانی سے محبت ہوتی ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے۔ جب آپ سے ملتے تو صحابہ کیا کہتے ہیں؟ فدا کا ابھی ہمارے ماں باپ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یہ ملاقات کا ادب تھا صحابہ کا کہ جب آپ کو ملتے تو کیا کہتے ہیں؟ فدا کا ابھی آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ وہ بندے کے لیے والدین ہی ہوتے نا، تو آ کے کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ تو اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین نے محبتوں کی دلیلیں قائم کی، عمل کر کے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کس طرح گزاری جاتی۔ اور آج ہم جو 1439 سال بعد بیٹھے اور چند دن ہو گئے 1440 شروع ہو جائے، محرم شروع ہوگا 1440 آ جائے، مگر آج ایمان کیسا ہے صحابہ کے مقابلے میں؟ اور قرآن کی آیتیں جو بھری پڑی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر ان کے ماں باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کی بیویاں، ان کے خاندان، واموال اقترفتموها، جو مال یہ کماتے ہیں، وتجارت تخشون کسادها، جس کاروبار میں ان کو کمی کا اندیشہ ہے، ومساکن ترضونها، اور جن گھروں کو یہ پسند کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ان 8 چیزوں کو گھر جا کے لکھ لیجیے گا۔ کسی ایک چیز میں شکایت، ایک آیت میں 8 چیزیں بتائی ہیں، 9ویں زندگی میں نہیں ہوتی۔ ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، بھائی، بیویاں، خاندان، مال، کاروبار اور اچھے بستر، ومساکن ترضونها، ایسے گھر اور ایسے مسکن جن کو یہ پسند کر چکے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، ان کو زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، بس صبر کرو کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اگر ان 8 چیزوں کی محبت موجود ہے اور اللہ، رسول اور جہاد ان سے زیادہ محبوب نہیں ہے، پھر زندگی میں کچھ نہیں آئے گا سوائے عذاب کے۔ حجی بات تو ٹھیک ہے، میرے بچے ہیں، بات تو ٹھیک ہے نبی کی، اللہ سے محبت تو ہے، اور مگر میری اولاد ہے، میرے بھائی ہیں، میرے ابا جی کا مسئلہ ہے، میرے کاروبار کا مسئلہ، 8 چیزیں اکٹھی بیان کی۔ اگر تمہیں یہ زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، رسول سے، جہاد سے، فتربصوا، بس ٹھہر جاؤ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں پہ اللہ کا امر آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کے عذاب کا کوڑا برس جائے۔ مسلمانوں، اگر اللہ سے محبت نہ کی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ کیا، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ اللہ کا قرآن، میری مصلحتیں، میری مصروفیتیں، میری شادیاں، میری دعوتیں، میرے بچوں کے اسکول، میری دکانیں، میرے کاروبار، میری تعلیم، میری ڈگری، میرا امتحان، اور یہی کہتی ہے نا امت۔ جی بات تو ٹھیک ہے، ہالینڈ والوں نے یہ کیا، جرمنی فرانس نے یہ کیا، اسرائیل نے یہ کیا، امریکہ نے یہ کیا، کسی نے قرآن جلائے، کسی نے نبی کو گالیاں دی، کسی نے اللہ کی توہین کی۔ جی میں کیا کروں؟ اجی میں کیا کروں؟ یہ سب یہاں بیٹھے پھنسے پڑے، نہ یہ جہاد جوگے، نہ یہ نماز جوگے، نہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت والے، میں بھی اور آپ بھی۔ مسلمانوں، سب چیزیں برداشت ہو سکتی ہیں، سب چیزیں کمپرومائز ہو سکتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کوئی مداحنت، کوئی مقاومت، کوئی مصالحت اس کے اوپر نہیں ہو سکتی۔ یہ مسئلہ میرا آپ کا نہیں ہے، یہ حبیب کی بلا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا مسئلہ ہے۔ صحابی تو تھے ہی، اور
अल्लाह के नबी पूछ रहे हैं कि पास आके पूछ रहा सहाबी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? फरमाया क़यामत कब आएगी? कब तूने कोई तैयारी की? वो पूछ रहा क़यामत कब आएगी? कब तुमने कोई तैयारी की? कब तैयारी तो मैंने कोई नहीं की। अल्लाह से मोहब्बत है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। अमल नहीं बताया उसने क्या बताया? सही मुस्लिम की हदीस। आपने जवाब दिया जो जिससे मोहब्बत करता उसी के साथ होगा, उसी के। अनस कहते जो रावी इस हदीस के कहते जितनी खुशी हमें इस बात पे हुई, कभी किसी बात पे हमें इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी हमें इस बात पे हुई कि मोहब्बत के साथ हम जन्नत में चले गए। कहा कि तैयारी तो कोई नहीं, मोहब्बत है। और फिर मोहब्बत सिर्फ नातों वाली नहीं थी, सिर्फ नारों तकरीरों वाली नहीं थी, मोहब्बत वो थी जो जान से गुजरते थे। जान पढ़ के देखें और कोई सीरत को पढ़े, कोई सहाबा की जिंदगी को पढ़े, फिर वो खून दे के नबी की हिफाजत करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वो बातें नहीं करते, अमल था उनके पास। अनस कहते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जितनी खुशी मुझे इस बात पे हुई किसी बात पे इतनी खुशी नहीं। वो तो देख के खुश होते। बदुनार की औरत खड़ी है, ओहद का दिन है, और कोई कह रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। वो मदीने से बाहर आके खड़ी हो गई, गुजरने वाले काफिलों से पूछती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई खबर दो। कहने वाले ने कहा जो तू पूछती है वो तो बिल्कुल खैरियत से है। क्या तू जानती कि तेरा बाप शहीद हो गया? क्या तुझे मालूम है कि तेरा भाई शहीद हो गया? क्या तुझे पता नहीं कि तेरा खावत शहीद हो गया? अच्छा, और यही रिश्ते होते ना औरत के, भाई बाप खामद सारे शहीद हैं, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खैरियत से कहती पीछे हटो, ये चेहरा दिखाओ। और देखने के बाद क्या कहती? कुल्लु मुसीबतिन बादा का जलालुन, ये चेहरा देखने के बाद किसी गम को हम गम नहीं समझते। सारी मुसीबतें खत्म हो गई, सारे गम चले गए जब मैंने ये चेहरा देख लिया। सारी मुसीबतें एक हो गई इस चेहरे को देखने के बाद। बाप का गम छोटा है, खामद है, भाई है, सारी शहादतों के बाद, सारे सदमों के बाद कहती कुल्लु मुसीबतिन बाद, सारी मुसीबतें पीछे रह गई जब मैंने ये जो देख लिया। जब मुझे अल्लाह के नबी दिख गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सहाबी कहते हैं मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, लोग तो लोग, बच्चे तो बच्चे, मदीने की लौंडियां इतनी खुश थी जब कभी इतनी खुशी आई नहीं थी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घरों में। क्या कह रहे थे? तलाअल बद्रु अलैना, आज हमारे ऊपर 14वीं का चांद आया है, आज हमारे ऊपर 14वीं का चांद चढ़ा है। मैं आपको मेरी आपसे गुजारिश है, हमेशा आपके पास आता हूं, कहता हूं हिजरत के सफर को बार बार करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा सख्त सफर है हिजरत का, उसको बार करें। भूख भी लगी होगी, प्यास भी लगी होगी। अबू बकर कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक पत्थर था, हल्का सा उसका साया था, मैंने जगह हमवार की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां बिठाया। इतने थके थे कि उस गर्म पत्थर की टेक के साथ थोड़े से साए में आप सो गए, और मैं क्या तलाश करने लगा? आपके खाने का बंदोबस्त। मैं गया तो बकरियों का चरवाहा देखा, मैंने कहा तेरे पास कुछ है? कहता दूध है। तो मैंने दूध लिया, लाके ठंडा किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। आप दूध पी रहे थे और खुशी किसे हो रही थी? अबू बकर कह रहे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूध अल्लाह के नबी पी रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुशी मुझे हो गई। आगे चलकर
कहते हैं सुराका हमारे इतने करीब आ गया जिस तरह 2 नेज़े का फासला होगा, ये 4 सिखों का फासला, 2 नेज़ों का फासला, 15-12 फुट का फासला तेरा और उनका रह गया, बस वो हमें पकड़ लिया। मैं रोने लगा। अबू बकर कहते मैं रोने लगा। अल्लाह के रसूल कहने लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर रोता क्यों है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए नहीं रोता, आपकी जान के खतरे की वजह से। मुझे रोना अपने ऊपर नहीं आ रहा कि मेरा क्या बनेगा, मुझे तो रोना यह है कि आपके साथ क्या होगा। अल्लाह तहज़न इन्नल्लाह मअना, अबू बकर डरना मत, बेशक अल्लाह हमारे साथ। सुराका का घोड़ा फंसा, वो नीचे गिरा, कहते मैं रो रहा था इस वजह से कि अल्लाह के नबी को नुकसान है। उनकी खुशी थी तो अल्लाह के नबी की खुशी के साथ, और उनके आंसू थे तो अल्लाह के नबी के गम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी अपनी जिंदगी थी। मदीने में आ गए, कह रहे मेरी सवारी को छोड़ दो, इसको अल्लाह का हुक्म है, इसको छोड़ दो। हर कोई कहता मेरे पास आए, वो आज बातों में तो सारे कहते मेरे पास आए मगर अमल में। कितने लोग हैं जो कहते हैं आज मैंने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी, मेरी पूरे पिछले हफ्ते की नमाजों में कोई नमाज नहीं की। और सुन्नते इब्राहिमी भी ज़िबा की थी ईद के दिन, और सुन्नते मोहम्मदी भी, दोनों ही ज़िबा करती थी। जानवर का गला काट दिया था, अपनी दाढ़ी काट दी। ये कौन सी कुर्बानी? कहते हैं 2 कुर्बानियां की मैंने, एक सुन्नते इब्राहिमी को ज़िबा किया और दूसरा सुन्नते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने दोनों को ज़िबा किया। उससे पूछो कहां जा रहे कुर्बानी की? कहता बनाई के पास जा रहा, पहले कसाई के पास और अब किसकी मोहब्बत है और किसकी मोहब्बत है? महज दुनिया को दिखाने के लिए, महज दुनिया को दिखाने। आप फरमाते थे फिलहाल मुझे ठंडक पहुंचाओ। आपकी ठंडक का माना क्या था? अज़ान कहो, नमाज कहो। आपकी ठंडक का माना नमाज था, आपकी ठंडक का माना नमाज था। और जिस उम्मत को नमाज की गर्ज ना हो, अब मूसा अलैहिस्सलाम बार बार कहते थे वो और जाके कम करा लो, तुम्हारी उम्मत से पड़ी नहीं था, 50 से 5 करा दी। कहा मूसा अलैहिस्सलाम अब मुझे अल्लाह से हया आती है, अब नहीं मैं वापस जाना चाहता। बार बार जाके मैंने 50 से कितनी करा ली है? हुई तो 50 थी। और मूसा अलैहिस्सलाम कहते थे आपकी उम्मत से पढ़ रही, मुझे अल्लाह से हया आती है, तब 50 से 5 रह गई हमारे पास, हमारी औलादों के पास रह गई। और हालैंड वाले बेईमानों को बिना वजह जरूरत नहीं हुई, उनको पता है ये कच्चे लोग हैं, ये पक्के लोग हैं, ये नारों वाले बातों वाले लोग हैं, ये उस किरदार के लोग नहीं। कब मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, इसको अल्लाह का अमर। अब वो यूब अंसारी के घर जाके बैठते ले गए, सुभान अल्लाह, कभी पढ़ना हो कहते मेरे घर के 2 हिस्से थे, एक ऊपर एक नीचे। तो मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऊपर रहेंगे, हम नीचे रहेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम ऊपर सोए और आप नीचे सोए, ये नहीं होना। आपने फरमाया मेरे मेहमान बहुत आते हैं तो सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है, मुझे नीचे रहने दो। आप नीचे रहने दो। सर्दी की मदीने की रात हमारे घर का मक्का टूट गया, हम ऊपर, खजूर के पत्तों की छतें होगी कच्ची, क्या कहते हमारे पास उस सर्दी में एक ही कंबल था ओढ़ने के लिए। मेरी बीवी उम्मे अय्यूब ने उसको पानी पे फेंका और हम उसको जज़ब करने लगे कि कोई कतरा नीचे जमीन पे न, छत से नीचे न टपक जाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आराम खराब ना हो जाए, आपको तकलीफ ना पहुंचे। हम सारी रात बैठ के ठिठुरते रहे, हमने अपना सारा कंबल भिगो दिया। कहते हैं मैं खाना भेजता और अपने गुलाम को कहता ऊपर खड़े रहना, जहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाए वो जगह मुझे आके बतानी। वो आके बताता कि आपकी उंगलियां यहां यहां लगी थी, जहां आपका बचा हुआ खाना
आपकी उंगलियां लगी होती वहीं से मैं खाता। एक दिन खाना आया, भेजा, सारा खाना वापस आ गया। तो कहने लगे, तो भागे गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने खाना वापस कर दिया। कहा लहसुन है, मैं इससे बेजार हूं, मैं इसको पसंद नहीं करता, इसमें लहसुन की बू है, ये मेरे लिए ठीक है, तुम खा लो। तुम्हारे लिए तो ठीक है, मेरे पास तो फरिश्ता आता है और हदीसों में फरिश्ता आता है, उसको इसकी बू की तकलीफ होती है, इसलिए मैं ये लहसुन नहीं खाता, ये बदबू की चीजें नहीं खाता। मेरे नबी लहसुन नहीं खाते थे और उम्मत शराब पीती है, उम्मत सिगरेट पीती है, उम्मत नशे करती है। फरमाया अगर मुझे तुम्हारी मुशक्कत का गम ना होता तो मैं मिसवाक को तुम्हारे ऊपर फर्ज करता। और यहां मुंह धोने के तो पते हैं, असल सफाइयों का नहीं पता। तो कहा तुम खा लो। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खाना आप छोड़ दे हम उसको किस तरह खा सकते? जिस खाने को आप नापसंदीदा कह दे हम उसको किस तरह खा सकते हैं? अनस कहते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक दर्जी ने हमारे लिए दावत की, मैं साथ गया तो गोश्त और कद्दू पके थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सालन में से कद्दू तलाश कर करके खाते थे। कहते उस दिन के बाद मुझे कद्दूओं से मोहब्बत, इसलिए मोहब्बत नहीं हुई कि वो खाने में अच्छे लगे थे या क्या। कहते सिर्फ अल्लाह के नबी को कद्दू पसंद मैं देखता था कि चुन चुन के खा रहे थे, उस दिन के बाद कद्दू मुझे महबूब हो गए। ये जिंदगी थी, जिंदगी थी, ये अमल था। जो देख लिया फिर उससे हिले नहीं। सोने की अंगूठी पहन के बंदा आ गया मस्जिद में, ये अंगूठी तो वो पहने जिसके सोने के ना पहनने हो, जन्नत के ना पहनने हो, ये तो आ गए। उसकी उंगली से उतारी जमीन पे फेंक दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर चले, सहाबा उसको कहने लगे चल पहननी नहीं, उठा ले, किसी औरत के काम आएगी, बेच के काम ले लेना, पहनना हराम है, किसी और इस्तेमाल में ले आओ। कहने लगा जो अंगूठी अल्लाह के नबी ने फेंक दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसको किस तरह, सोने की अंगूठी है, पता है कि औरत को जायज है, बेचना जायज है, कारोबार कर सकता हूं, उठा के जेब में डाल दूं, कोई मसला नहीं, हलाल है। सहाबी कह रहे इसको उठा ले, किसी काम में ले आएगा। जो अंगूठी मेरे नबी ने उतार के फेंकी मैं इसको उठाऊंगा। मुसलमानों क्या ये अतात है? क्या ये मोहब्बतें मौजूद हैं? क्या ये जज्बे मौजूद हैं? अल्लाह मैं कहता हूं मेरे पास वक्त पहले मुख्तसर सुई के बराबर होने लगी, वरना हजरत अबू बकर सिद्दीक अकेले की आप जिंदगी पढ़ें आपको समझ आ जाए मोहब्बत कहते किसे, अतात कहते किसे, और अमल भी वही करता है जिसके दिल में मोहब्बत होती, जिसके दिल में एहसास होता है। सहाबा का मसला है। उम्मे हानी कहती रज़ी अल्लाह अन्हा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ मैं बैठी, बाएं तरफ सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आके बैठ गई। आपने पानी पिया, बचा हुआ पानी मुझे दे दिया, मैंने पी लिया और पी के मैंने कहा मेरा रोजा था, मगर आपका पिया हुआ पानी इस वक्त छोड़ना मुझे बर्दाश्त नहीं था, मैंने रोजा खोल दिया। आपने फरमाया खजा था, ऐसी नकली, अब कोई हर्जी, कोई हर्जी नहीं। कुरान की आयत आ गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ऐ ईमान वालों तुम्हारी आवाज नबी की आवाज से बुलंद ना हो जाए, ऊंची नहीं बोलना। सात दिन मां से पूछना रज़ी अल्लाह अन्हा, तो फैसले साबित किधर है, क्या वो बीमार है? नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हमसाया है, मेरी दीवार उसके साथ है, मेरी मालूमात में वो बीमार नहीं, वो बीमार है, तब फिर वो मुझे मिलता क्यों नहीं? अच्छा कहते मैं पता करता हूं। गए, कहा कैसे क्या हुआ? मैंने अपने आप को जला दिया, मैं आग में चला गया। तब क्या? कुदरती तौर पे मेरी आवाज ऊंची है, मैंने बोलना बंद कर दिया, मैं अल्लाह के नबी की मजलिस में नहीं जाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऊंची बोलूंगा और
मैं गुनहगार हो जाऊंगा। आपने कहा उसको बुलाओ कि इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब तो झगड़े करना है कि आपके सामने खड़े होकर लड़ाइयां मत करो, ऊंची ऊंची बोलो मत, तकरार मत करो। वो घर से इस वजह से नहीं निकल रहे, मेरी आवाज ऊंची, मेरी आवाज ऊंची है। अल्लाह क्या, आप जुमे का खुतबे में खड़े हुए, सहाबा से कहा बैठ जाओ। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह को अभी जूतों की जगह पे है, मस्जिद में दाखिल नहीं हुए, दरवाजे में खड़े जूतों में वहीं बैठ गए। आपने कहा अब्दुल्लाह अंदर आ जा, अब्दुल्लाह अंदर आ जा। जब आपने कहा बैठ जा, बैठ जाओ, मस्जिद में नहीं पहुंचे थे, जहां लफ्ज पता लगा वहीं बैठ के कहा अब्दुल्लाह अंदर आओ। पता था ये क्यों बैठा, और वो इशारों को समझते थे, वो इशारों को समझते थे, जान देने में भी इशारों को समझते थे, अताअत करने में उनकी तो दुनिया, उनकी आखिरत, उनकी दौलत अल्लाह के रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आपके गिर्द घूमते थे, उनकी जिंदगियां आपके गिर्द चलती थी। आपकी खुशी में उनकी खुशियां, आपके गमों में आपके गम, वो आपकी एक एक मुस्कुराहट को जानते थे। और जब मैं लोगों को हदीस सुनाता हूं कि आप मुस्कुरा रहे थे और आपके दांत दिखाई देते, सहाबी को पता था आपके दांत दिखाई देते। अमर इब्नुल आस कहते हैं जितनी मोहब्बत मुझे अल्लाह के नबी से थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी मोहब्बत मुझे किसी से, जितनी आपकी शान मेरी आंख में थी किसी के में नहीं थी, मगर आपका जलाल मेरे ऊपर इतना था, मैंने कभी पूरी आंख खोल के देखा नहीं आपको। अगर मुझे आपसे कोई आपका हुलिया पूछे, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने कभी पूरी आंख से आपको देखा। अमर इब्नुल आस जलीलुल कदर साहबी है, कहते मैंने जिंदगी में कभी पूरी आंख खोल के आपको देखा। तो हमारे लोग से बेचारे, ये सही हदीस है, अक्सर सही मुस्लिम की हदीस है, हमारी मस्जिदों में ये तस्करे नहीं हुए। हम डर गए कि नहीं नहीं इसको इश्क कहते हैं लोग, इसको इस तरह की बातें नहीं करते मस्जिदों में, मगर वहां औकात ही होती। सलमा बिन काब, रबिया बिन काब असलमी कहते हैं मैं रात आपके पास गुजारता था, आपके लिए सामान लेके आता, वुजू का पानी, मिसवाक लेके आता, रात आपके पास रहता खिदमत के। एक तो मुझे फरमाने लगे रबिया कुछ मांग ले। मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह दुनिया में आपके साथ हूं, जन्नत में आपके साथ हो। अच्छा चल कुछ और भी मांग लो। अगर मैं होता तो ये तो कंफर्म हो गया ना, अच्छा कुछ और भी मांग ले। अरे बस अल्लाह के नबी यही सब। दूसरा सवाल नहीं किया, क्या फिर सजदों को ज्यादा कर, फिर सजदों को। मैं कहता हूं नसीहत भी कमाल की, नमाज की, मगर मांगने वाले से एक दफा पूछा तो उसने जन्नत मांगी, आपका साथ, अगले में ऑप्शन डालती कि अब कुछ और, कुछ नहीं, सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ आप चाहिए, कुछ नहीं। साहबी आ गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जाते हैं, भूल भुलैयों में पड़ जाते हैं, आपके पास आते हैं, आपको देखते हैं, ईमान पैदा हो जाता है। मैंने भी दुनिया से मर जाना है, आपने भी दुनिया से चले जाना है, मुमकिन है मैं भी जन्नत में चला जाऊं, आप तो हैं जन्नत में। दुनिया में आपको मिलता हूं, जन्नत में आपसे किस तरह मिलूंगा, मेरा दर्जा बहुत नीचे होगा, आप बहुत ऊंचे होंगे, जन्नत में आपसे किस तरह मुलाकात होगी। उनकी फिक्रें ये थी, जन्नत के महलों की फिक्र कम थी और जन्नत की चीजों की फिक्र कम थी, जन्नत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ किस तरह होंगे, इसकी फिक्र। सहाबी ने बात की है, सहाबी ने बात की है, वही आनी शुरू हो गई। रसूल मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। सहाबी परेशानी में आया, दुनिया में तो जब मैं जरा उदास होता हूं, आके आपको देखता हूं,
دل ٹھنڈا ہوتا ہے, ایمان آسمان تک جاتا ہے, میں اب جنت میں آپ کو کس طرح ملوں؟ جو اللہ کی اطاعت کرے گا, جو رسول کی اطاعت کرے گا, بس وہ ساتھ ہوگا نبیوں کے, صدیقین کے, شہیدوں کے, نیکوں کے, اور بڑا ہی خوبصورت ساتھ ہے اس کا. شرط لگا دی اطاعت کرنا, ساتھ مل جائے. میں کہتا ہوں قربا بات کر رہا ہے حدیبیہ میں, مشرکین مکہ کا ایجنٹ بن کے آیا, مغیرہ بن شعبہ سب پہ کھڑے, لوہے کا خوض پہنا ہوا ہے, قربا بات کرتا کرتا داڑھی کے ہاتھ لگا, تلوار ہاتھ میں اس کو دستہ مارتے, ہاتھ پیچھے کرا. مشرک کا ہاتھ پیچھے کرتے نہیں, پیچھے کرتے. وہ بڑا چڑھ کے آئے تھے مشرکین. آپ کو حدیبیہ کا سارا واقعہ, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اپنی تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ سے مارتے, پیچھے کر, داڑھی کو ہاتھ نہیں لگا. ام حبیبہ نے بستر کھینچ دیا. ابو سفیان پوچھتے ہیں میں بستر کے لائق نہیں یا بستر میرے لائق؟ اللہ کے نبی کا بستر ہے پاک, تو مسلمان نہیں ہے, یہ بستر تیرے واسطے نہیں, باپ ہے سکا باپ ہے, بستر کھینچ دیا. کہ نہیں, وہ حیران ہوا کہ پتہ نہیں بستر میں کرنا ہے, میں سردار ہوں. کہا نہیں, بستر کا مسئلہ نہیں ہے, بستر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے, تیرے واسطے نہیں. باپ کے سامنے پیچھا بستر کھینچا. وہ لوگ تھے دنیا میں, قسم اللہ کی دنیا میں وہ لوگ تھے, کام کر کے گئے, ایک کردار بنا کے گئے, زندگی دے کے گئے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے پاس اونٹ ایک مارکے میں, اونٹ ذرا منہ زور تھا, میرے ابا جی کا اونٹ ذرا تھا, وہ اللہ کے نبی کی سواری سے آ گئے. میرے ابا جی پیچھے سے بھاگے آئے, پیچھے کہتے میں نے فوراً اپنی سواری اللہ کے نبی کی سواری سے پیچھے کی, مجھے معلوم نہیں میری سواری آگے نکلی, حضرت عمر پیچھے سے بھاگے آئے, پیچھے کا کہتے اونٹ منہ زور تھا میرا, وہ آگے کو نکلا, میرا ابا پیچھے سے بھاگ آیا, پیچھے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں, اپنی تو سمجھ سے باہر باتیں, ہم تو خاتوں کو بھی نہ سمجھ سکے, نبی کی گستاخی کو بھی نہ سمجھ سکے, نبی کی حرمت کو, نبی کی عزت کو, نہ اس کا دفاع کر سکے, نہ اس کو سوچ سکے, نہ اپنی اولادوں کو یہ کہہ سکے. ہماری تو زندگی کا مقصد اور ہے, ہماری تو مصروفیات مسائل اور ہیں. ابو قتادہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم نے سفر شروع کیا رات کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھے, میں پیدل. دن کے جہاد کرتے تھکے, گرمی موسم, صحراؤں کی دن کی گرمی بہت ہوتی ہے, رات کی ہوا میں نشہ ہوتا ہے, بہت ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے صحرا کی رات. آپ ملتان کے لوگ ہیں, آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا کہ جن علاقوں میں گرمی شدید پڑتی وہاں کی رات کی ہوائیں, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے. اگر ایک چیز کی کمی ہوتی ہے تو دوسرا انعام ضرور ہوتا ہے, رات ٹھنڈی ہوتی. رات شروع ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ اونگنے لگے, ایسے سائڈ پہ ہوئے. آپ ہی جب گاڑی میں سوتے, میں بھی سوتا ہوں, تو کبھی ادھر کبھی ادھر. کہتے میں پیدل تھا, آپ سواری پہ میں بھاگ کے آگے ہوا, میں نے اپنا کندھا آپ کے ساتھ لگا دیا. اونٹ چل رہا تھا اور میں پیدل چل رہا تھا, اور یہ خدشہ تھا کہ میرے ہلنے سے اللہ کے نبی اٹھ سکے. آپ کو سہارا ہوا, آپ صحیح ہو کے بیٹھ گئے. آدھی رات چلتے رہے, پھر آپ گرنے لگے, میں نے کندھا صاف کیا, برابر چلتا رہا, پھر آپ کچھ ٹھیک. فجر کا وقت ہوا تو نیند کا اتنا غلبہ آیا کہ آپ خبر نہیں رہے تھے. میں نے کندھا دیا اور ساتھ پیدل. وہ آپ سوچ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں, کسی کو یہ سمجھ آ رہی کہ اونٹ کی سپیڈ کے ساتھ سپیڈ رکھنا, اپنے کندھے سے اللہ کے نبی کو سنبھال کے رکھنا, اور ان کو اندیشہ نہ ہو کہ مجھے کسی نے سہارا دیا. آپ کھلی کا کون اب وہ کہتا کب سے کیوں چل رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے سفر شروع, جب سے سفر شروع ہوا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, یہ کس سے کہانیاں نہیں.
हमने भी तो सही मुस्लिम मर्जी की पढ़ी है ना, तो अल्लाह ताला तेरी हिफाजत करे, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत करे। उसी वक्त दुआ दे दी। अम्मा जी आशा कहती रज़ी अल्लाह अन्हा सो रहे थे, उठे, कहने लगे हो क्या ही अच्छा होता अगर कोई मेरा पैरा देता, कोई दुश्मन का मसला होगा, कोई मसाइल होंगे, तो कितना ही अच्छा होता कि आज मेरा कोई पैरा देता। अम्मा जी कहती इतनी बात की, बाहर से किसी हथियार की आवाज आई, तलवार की, नेज़े की, किसी चीज की झनकार आई हथियार की। लेते लेते पूछते कौन का साहब से नबी वकास का किधर का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में लेटा था, चैन नहीं आया कि अल्लाह के नबी के पैरे पे पता नहीं कोई है कि नहीं, मैं आ गया। अम्मा जी कहती इतने सुना तो सो गए और मैं आपके खराटे सुन रही। कहती कि खराटे लेने लगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे दाद बाहर आके बुलाया नहीं है, नबी ने ख्वाहिश की है। कितनी देर में हथियार की आवाज बाहर आ गई। ये लोग थे, अल्लाह जानता है, ये लोग थे जिन्होंने दुनिया बदली, जिन्होंने दुनिया के निजाम बदले। एक दफा अभी मुसलमान होके गए ना, अल्लाह अकबर, वहां पहुंचे मक्का में, सुमामा बिन साल उमरा किया, मुश्किल ने घेर लिया और कहा मैं इससे ज्यादा बात न करूं, मैं मुसलमान हो गया हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत देंगे तो तहामा से तुम्हारे लिए गंदुम आएगी, वरना एक दाना गंदुम का मेरे खेतों से तुम्हें नहीं मिलेगा, ये मेरी तिजारत नहीं है। अब अल्लाह के नबी का हुक्म, तुमने मुझे तंग किया ना, जितनी रोटी खाता हूं मेरे गंदुम से आती, मेरी गंदुम से आती, आज के बाद तुम्हें मिलेगी नहीं, इजाजत उधर से लेनी पड़ेगी। अपनी जिंदगी में कैसे दो बातें सुन लें, शायद मुझे भी फायदा हो जाए, आपको भी फायदा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं जाओ साथ बिन रबी को तलाश करो। बंदे भी तो कमाल होंगे जिनके तलाश के बारे में कौन कहते थे, कितनी फिक्र होगी, साथ किधर है, जाओ साथ को तलाश करो। और नबी ने कहते हमने मैयतों लाशों में देखा नहीं मिले, जख्मियों में देखा, तो साथ में नबी आखिरी सांसों, तो साहब भी कहते मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम कहते साथ, अब मेरा भी इस्लाम क्या देना कि जन्नत देख रहा हूं, 12 जख्म मुझे लग गए, 12 जख्म लग, और मेरी कौम मुहाजिरीन को कह देना अगर तुम में कोई जिंदा रहा, किसी की आंख झपकती हुई और दुश्मन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आ गया, क़यामत में कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम में से कोई जिंदा रहा, उसकी आंख ये नहीं कहा कि चलता फिरता, सिर्फ आंख झपकती हुई अंसार तुम में से कोई अल्लाह के नबी तक आ गया ना तुम्हारी जिंदगी में, क़यामत में कोई उज़र नहीं, अगर मगर नहीं चलेगा। मुसलमानों ये हदीसें सिर्फ उनके लिए, मेरे लिए। शहीद होने वाला बंदा अपनी कौम को कह रहे, माज मुफिस जैसे बच्चे अब्दुल रहमान बिन औफ से कह रहे अबू जहल कौन है, गालियां देते। अबू जहल कौन है जो गालियां देता, सही बुखारी की हदीस है। कहते मैं सोचता था कुछ बंदे तगड़े होते, हमला होता, मेरा साथ देते, तो बच्चे दाएं बाएं खड़े, मैंने बताया वो है। कहते लपक के गए और फिर लंबा वाक़या जो तलवारों से उसका फुर्दस निकाला इन छोटे छोटे बच्चों ने जो अल्लाह के नबी के साथ लिपटे थे। एक कहता था अबू जहल को मैंने मारा, दूसरा कहता था मैंने मारा, खून आशाम अबू जहल की खून से भरी तलवारें थी, आपने तो मैं एक ने नहीं दोनों ने मारा। जुर्म क्या लगाया, गालियां देता, गालियां देता था। अबू तलहा ने नीचे खड़ा किया हुआ है और आप कह रहे हैं लोगों को जो गुजरता है अबू तलहा को तीर दो, तीर दो। सामने वो है, अकेले रह गए, पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
वो तीर मारते, मुशरिकों को तीर लगता, आप उनके सर से ऊपर को देखते किसको तीर लगा, और नबुल्लाह कहते अल्लाह के नबी सर ऊपर मत कर, कोई तीर आपको न लगे, जो लगे तो किसे लगे, मैं आपकी ढाल हूं, जो तीर लगे मुझे लगे, आप ऊपर से मत झांके, आपको लग जाएगा। पूरी बाडी के बराबर बाडी आगे करके खड़े कहते जो लगेगा मुझे लगेगा, आपको। दूसरा अबू दुजाना भागे, तीर ही कोई नहीं, लड़ने का सामान नहीं, आपके चेहरे की तरफ चेहरा करके खड़ा कर दिया, कुछ दुश्मनों की तरफ कर दी, कमर पे तीर आने लगे, अल्लाह के नबी का दिफा कर रहे हैं अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु। तो कोई है जो उम्मत में आज ये ईमान रखता हो, और जिसका ये हो, 5 अंसारी हैं, 2 मुहाजिर हैं, अल्लाह के नबी को कंगन की तरह घेरा हुआ, जिसका ये कड़ा नहीं होता वो आपके घेर, एक एक शहीद होता है, 5 के 5 अंसारी शहीद हो गए, और अल्लाह के नबी मुहाजिरों से क्या कह रहे हैं, आज हमने अपने साथियों से इंसाफ नहीं, वो जाने दे गए, वो सारे, आप चौकी पे चढ़ना चाहते हो, ऊपर पत्थर पे चढ़ा नहीं जाता, अल्लाह बिन उबैदुल्लाह दौड़े आए, अपने कंधे नीचे किए, आपने ऊपर पांव रखे जिस तरह हम करते हैं, तो थोड़े खड़े हुए, आपको चढ़ा, इस तरह आपकी हिफाजत करते हैं, इस तरह आपके छाव करते हैं आपके ऊपर, आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ बनाते, आपकी आंखों के इशारे आपके गुस्से को समझते। तो मुसलमानों, आज अगर मुसलमानों ने दोबारा ये सीरत ना अपनाई, ये किरदार ना अपनाए, ये मोहब्बतें ना दिखाई, तो ये आज कैंसर हुआ परसों फिर शुरू हो जाएगा। ये कोई एक मसला है, कभी कोई सलमान रुश्दी पैदा हो जाता है, कभी वो बांग्लादेश की औरत पैदा हो जाती है, कभी ये डेनमार्क वाले पैदा हो जाते हैं, पाकिस्तान बनने से पहले कोई और पैदा हो गया था, गाजी लमदीन जैसे लोगों ने जिनकी बातें की, ये सब लोग चलते रहे, मगर मुसलमानों का एक किरदार था, और मैं किरदार में पहली बात आपसे कहता हूं, मुसलमानों का अमल। और बातें खत्म हो सकती हैं, नारे खत्म हो सकते हैं, तकरीरें मुजाहरे खत्म हो सकते हैं, किरदार बाकी रहते हैं, अमल बाकी रहते हैं। हम अपनी मस्जिदों से, अपने शहरों से, अपने घरों से, अपने कारोबारों से, अपने मामलात से काफिरों को पैगाम दे दें, हम अपने नबी के हैं, तुम्हारे नहीं। हम सारी दुनिया की हर चीज का सौदा कर सकते हैं, अपने नबी की हुर्मत का सौदा नहीं कर सकते। हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, कमा अलैना इल्ल बलाग।